श्री नरेश गुजराल, माननीय नरेश गुजराल जी। Sir, all societies face serious challenges on account of discrimination and institutionalized inequality. The US has the African Americans, Europe has gypsies, Australia has Aborigines, but nowhere in the world are inequality by birth and moral neutrality to such discrimination so institutionalized as our society. Sir, future of the vast majority of our children can reasonably be predicted at the time of their birth by assessing the family's economic status, parental education, and the caste and religion. So far as our societies has ignored the plight of religious groups other than Hindus who are also mired in poverty and inequality. So this bill seems to open up the debate of reservations for Muslims, Christians, Jains, and certain Sikh communities as well as other minorities. So we need an urgent and honest national debate and a sensible and pragmatic response so that all children who are disadvantaged are dealt a fair hand. Common sense should be the guiding principle in evolving a more rational model of reservations. So far, it has been seen that the creamy layer has been taking all the advantages of reservations, and I don't understand how a family that declares an income of 8 lakhs or has 5 acres of land can be called the poorest of the poor. Sir, the fact is that our youth are frustrated and clamoring for jobs, and our economy is not producing enough jobs to satisfy them. We basically need to create more jobs, which would be possible only if we incentivize labor-intensive industry. Sir, tourism is one such industry which is a huge employment generator. But what have we done? We are putting a 24% GST on hotels in this country, and tourism is moving away from India to Sri Lanka, to Thailand, to other countries in the East. Similarly, sir, another employment generator is garments. Garment manufacturing provides the maximum number of jobs after agriculture in this country. The entire economy of Bangladesh is built by just one industry, which is garments. So, sir, today, our exports, this huge country exports 17 billion of textiles. Only Bangladesh is exporting 32 billion and moving towards 50 billion in the next 3 years. As a result of this, they have moved up in the Human Development Index. Their women are doing very well, and their birth rate has fallen. So my point is that the government needs to take more pragmatic steps to incentivize labor-intensive industry. Sir, I would say that the government has taken many steps to repair a damaged economy. But, sir, we have to take more pragmatic steps. I give an example of electronics. Today, our import of electronics, the bill is almost the same as that of petroleum. China has created millions of jobs in this sector. We need to take pragmatic steps. We need to incentivize this industry so that more jobs are created. Just this reservation is not going to satisfy our youth. Many friends from across have said they have given figures of how many jobs are being created in the government sector. Those are very few. Eventually, the answer lies that the industry will have to create jobs, and for that, they need to be incentivized. And I do hope that the next NDA government will take more steps to ensure that we incentivize our industry and create more jobs. Thank you very much, sir. माननीय सांसदों,
ये कोई इनकम की सीमा नहीं है, इसलिए 5,000, 10,000, 15,000 की जो बात उन्होंने कहा वो क्या कहते हैं कि गलत है। दूसरा जो ओबीसी का है उसका आय का सीमा 8 लाख है। ये नहीं है कि 8 लाख में कितने लोग आते हैं, 8 लाख तक है, 8 रुपया से लेकर के 8 लाख तक। उसी तरीके से जो अभी क्या कहते हैं कि जो आया है उसकी भी सीमा जो है 8 लाख है और 5 एकड़ है, मतलब 5 एकड़ तक। प्लीज अपनी जगह बैठे प्लीज। देखो तुम बेटी के माननीय मंत्री जी आप बोले, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी, आप बोले। इसलिए करूंगा कि अपनी जगह बैठे प्लीज मैं एक मिनट इधर से कोई मत बोलिए ना, बोलने दीजिए ना, अपना शांत हो जाएंगे ना। तो मैं लेट हिम फिनिश, आई विल कम, लेट हिम फिनिश प्लीज। मनोज देखिए, आई विल कम। मिश्रा जी मैं आऊंगा, मैं कहूंगा, जहां साहब मैंने कहा मैं आपको कहूंगा पॉइंट आउट, प्लीज आप बैठे। तो आप दूसरी बात जो है, देखिए हम लोग सब लोग एक ही परिवार के रहे हैं और आप लोग लड़ते, मंडल में हम लोग साथ में लड़े हैं और ठीक कोई बात नहीं है, चल ठीक है, ठीक है। कृपया आपका बोलने का समय, माननीय रामविलास जी की बात क्या, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, आप बोले, सुनिए आप बोले। दूसरी बात जो है, इन्होंने कहा कि जो 10% का दिया गया है मंडल कमीशन के जज ने जो है उसको कहा इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं हो सकता है, लेकिन इस बात को भूल गए कि मंडल कमीशन के सामने में जो है संविधान की धारा 16(4) था और 16(4) जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोगों के लिए है और इसलिए सुप्रीम अभी तक जो है संविधान की धारा 15 में या 16 में आर्थिक आधार नहीं जोड़ा गया था और इसलिए उसने कहा कि हमारे सामने में सिर्फ 16(4) है और इस 16(4) में जो है उसको हमको जजमेंट देना है। इसमें सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण लिखा हुआ है, वो आर्थिक दृष्टिकोण क्या कहते हैं कि इसमें नहीं आ सकता है और इस आधार पर उन्होंने कहा कि वो असंवैधानिक है क्योंकि संविधान में नहीं है। अब ये संविधान में जो है फंडामेंटल राइट्स में आ रहा है, जो 15(6) है और 16(6) में आ रहा है, तो अब वो संवैधानिक हो जाएगा और जब संवैधानिक हो जाएगा तो वो जो असंवैधानिक कहा जा रहा था वो मामला जो है खत्म हो जाएगा। तीसरा चीज क्या कहते हैं कि जो 50% तक आरक्षण का मामला है वो भी 50% तक आरक्षण जो है वो भी जो है 16(4) के अंतर्गत था, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो है पिछड़े क्या कहते हैं पिछड़े हुए हैं और जो अनुसूचित जाति जनजाति के कहते हैं कि जो है समुदाय के लोग हैं उनके लिए था। लेकिन उसके अलावे ये जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है या इकोनॉमिक क्या कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या कहते हैं कि जो है वो उसके अलावे है और वो संवैधानिक है। इसलिए नरसिम्हा राव की सरकार ने जो है जब कहा था उसको नोटिफिकेशन किया था तो उन्होंने अपने जजमेंट में कहा था कि ये मामला जो है चूंकि हम 16(4) को देख रहे हैं, संविधान में इकोनॉमिक क्राइटेरिया कहीं नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब आप संविधान में जुड़ गया है तो कोई भी आदमी कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में जब जाएगा तो वो सीधे क्या कहते हैं कि संवैधानिक बन जाएगा। और उसके अलावे भी हमने मांग किया है, हम देखिए उपाध्यक्ष जी, मैं 3-4 बातें कहना चाहता हूं। 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है अनुसूचित जाति जनजाति का, तो जो अनुसूचित जाति जनजाति है उसका क्राइटेरिया सामाजिक है। वो पहले आज जो दलित जिसको कहते हैं, हालांकि दलित जो है अनुसूचित जाति है, ये अनुसूचित जाति की उत्पत्ति कहां से हुई? ये पहले अछूत थे, इनको छूना पाप माना जाता था। इस देश में चींटी को चीनी खिलाया जाता था, लेकिन जो है अछूत को जो है दलित को जो है कहा जाता था अछूत है, इससे छुआछूत रखा जाता था। तो
जब पहला आरक्षण जब हुआ, हालांकि 42 से शुरू हुआ, अरे क्यों हल्ला करती हैं? कृपया इस तरह से हस्तक्षेप करना सही नहीं है आप। तो उसके बाद जो है, जब उसके बाद क्या कहते हैं कि जो है कि आए, जब क्या कहते हैं कि जब जो है आजादी की लड़ाई क्या कहते हैं कि हुई चली, तो महात्मा गांधी जी ने जो है इसका नाम हरिजन रखा। लेकिन हुआ कि हरिजन अनपार्लियामेंट्री शब्द है, और दक्षिण भारत में जो देवदासी होती है उसके जो बच्चे होते हैं उसको हरिजन कहा जाता है, इसलिए असंसदीय है। तब उसको क्या कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कहा। शेड्यूल कास्ट का मतलब है कि वो कास्ट जो संविधान के शेड्यूल में है। तो इसलिए जो इसका आरक्षण है, इसके आरक्षण में जो है कहीं कोई सामाजिक आर्थिक आधार, ये सही नहीं है। कृपया बोलने दे, कृपया उन्हें बोलने। हाँ आ गए। नहीं बैठकर बीच में बिना अनुमति बीच में बोला सही नहीं है। कृपया बोलिए। तो उसमें भी जो आपको मालूम है कि जो अनुसूचित जाति को आरक्षण मिला, वो पहले हिंदू जो अनुसूचित जाति के थे उनको दिया गया, फिर बाद में उसमें जो है सिख को जोड़ा गया, और फिर बाद में जो है 1990 में जो है उसमें जोड़ा गया 9 बुद्धों को। फिर उसके बाद जो मंडल कमीशन के संबंध में कहा गया कि 1980 में मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट दे दिया। 80 में देने के बाद 10 साल तक क्या कहते हैं कि वो रिपोर्ट लागू नहीं हुआ। और जब आपका जब मौका आएगा तो आप बोलेंगे, आपका जब मौका आएगा तो बोलेंगे, आपका जब मौका आएगा तो बोलेंगे, आपका मौका आएगा बोलिएगा। देखिए आप बोलिए। मंडल कमीशन इनको कहिए कि सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, उनको मालूम है। आप कृपया अपनी जगह पर बैठे, आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है, कृपया हस्तक्षेप न करें। तो इसलिए जो है 1989 में हम उस समय में मंत्री थे, और बीपी सिंह जी की जब सरकार बनी तो उस समय में जो है मंडल कमीशन को लागू किया गया। और उस समय में भी हम लोग चाहते थे कि इकोनॉमिक आधार पर हो, लेकिन जैसा कि कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट देख रहा था 16/4 को, और उसमें नहीं था, वो था। अब तीसरा जो मामला है वो है आर्थिक आधार का। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी ने हमेशा से कहा है कि जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी क्या कहते हैं कि विशेष अवसर मिलना चाहिए। आरक्षण का मतलब होता है विशेष अवसर होता है। और जितने भी लोग हैं यहाँ क्या कहते हैं कि जो है क्या कहते हैं कि जितने भी बीएसपी में क्या कहते हैं कि नेता हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी में थे जनेश्वर मिश्रा जी, हम लोगों के पार्टी में क्या कहते हैं, चाहे मधुल मिया हो, मामा बालेश्वर दयाल हो, एसएम जोशी हो, राजनारायण जी हो, ये सारे के सारे लोग ऊंची जाति के लोग थे। और उन लोगों ने कहा था कि ऊंची जाति के लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जब 100 में 60 का नारा दिया था तो पहले कहा कि इनको नमक बनना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि नमक अपने ऊपर में घमंड नहीं कर बैठे कि हम इस स्वाद को बनाते हैं बिगाड़ते हैं, उनको खाद बनना चाहिए। तो वो खाद बनते रहे, और खाद बन करके जो है ये क्या कहते कि है इन्होंने मायावती को आगे बढ़ाया, उन लोगों ने हम लोगों को आगे बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी में हर पार्टी के लोगों ने जो मैं आपसे अदब के साथ कहना चाहूंगा कि आप अगर जो सदन में नहीं है उनका नाम ले रहे तो अदब से नाम लीजिए। अच्छा ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि बहन मायावती जी, और आप इस तरह से अगर बात कर रहे हैं तो जरा सोच समझ के बात करिए। सॉरी आप गलत तरीके से इस्तेमाल मत करिए। अरे हमने सुनिए, हमने कहा दिया, आपने कहा मैं बहन, मेरी प्यारी बहन मायावती जी, जिनको आप लोगों ने वो उनकी वजह से आज आप बैठे हाँ ठीक हो, मैं आप अपनी बात कहें हो माननीय मिश्रा जी, और प्लीज आप कहें।
माननीय पासवान जी की बातों के अलावा कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। आप कहें आप क्यों जाते हैं उसमें मैं तो कहा ना, मैं कृपया बैठे। अध्यक्ष जी मैं कहना नहीं चाहता हूं, मैं एमएलए बना था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से 1969 में, और ये 50वां साल है। अब वो यदि कोई कहते हैं कि फलना आदमी हमको राजनीति में लाया है, तो मैं नहीं कह सकता हूं। ये रिकॉर्डेड चीज है कि मैं 1969 में एमएलए बना, आज 50 साल हो रहा है, और कौन लाए किसको नहीं लाए हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो ऊंची जाति के लोग थे हर पार्टी में, उन लोगों ने आज तक खाद बनने का काम किया, और उन लोगों की हमेशा उन लोगों ने जो है अपने ही जाति के लोगों से गाली सुनने का काम किया। और आज यदि ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए, जिनके पास में आजादी के समय में 10 बीघा जमीन था, आज उसके पास में 5 कट्ठा जमीन है, वो भी क्या कहते हैं कि आज गरीब हो गए हैं। और संविधान में क्या कहते हैं, गरीब की बात की जाती है, और हमेशा हम लोग कन्फ्रंटेशन होते रहता था। जब दलितों का आरक्षण का मामला आया था तो सब लोग कहते थे कि पिछले मंडल कमीशन के समय कहते थे कि मंडल कमीशन को आप क्यों सपोर्ट करते हो। हम लोगों ने कहा कि डबल लॉक लगेगा, नहीं तो क्या कहते हैं आरक्षण खत्म कर देगा कोई। तो हम लोग मिल करके क्या कहते हैं कि लड़े, और आज क्या कहते हैं कि जब ऊंची जाति के गरीब का मामला आया है तो प्लीज टेक योर सब लोगों का, यू आर सच ए सीनियर मेंबर मिस्टर रंगराजन, यू आर सच ए सीनियर मेंबर, यू प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। हम सब लोगों का फर्ज बनता है, हम प्लीज टेक, हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि हम सब लोग मिल करके जो है हम लोग लड़ने का क्या करते हैं, प्लीज आवाज करें। दूसरा जो है, मंडल कमीशन के समय में मैं मंत्री था, तो मैं आपसे I'll come to you. Let him finish. I'll come. Please complete. So I'll come. Let him complete. तो उपाध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब नरेंद्र मोदी का सवाल आता, I'm coming. I've already told you, Mr. Rangarajan. Please. जब नरेंद्र मोदी जी का सवाल आता था तो सब लोग यही लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। और जब क्या कहते हैं कि जब हम लोगों ने दलित जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने वही जजमेंट दिया जो बीएसपी की नेता सुप्रीमो ने अपने जो 2007 में जो है जब मुख्यमंत्री बनी थी, तो उन्होंने कहा था इसका मिसयूज हो रहा है और इसमें संशोधन होना चाहिए, और एक गिरफ्तारी के पहले इसका क्या कहते हैं कि जांच होनी चाहिए। उसी के आधार पर उन्होंने दिया। और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो है जब पास करके दोनों सदन में Yes, I'm telling you, just I'll come back. के खिलाफ में लोगों ने जो है आंदोलन करना शुरू किया, कुछ लोगों ने, सब लोग चुप्पी लगा दिए, सब लोग कोई बोले नहीं कि क्यों आप कर रहे हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आसान है, कहना बड़ा आसान है और करना क्या कहते हैं बड़ा कठिन होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने यदि कहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ में दलित भी है, आदिवासी भी है, पिछड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है। बाबरी बहुत हल्ला हो रहा था, राम मंदिर। प्रधानमंत्री ने सीधे कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वही हमको मान्य होगा। उसके बाद जब प्रधानमंत्री आए थे तो संसद भवन के सामने में उन्होंने कहा था कि ये संसद हमारा मंदिर है और संविधान हमारा धर्म है, हम न हिंदू हैं न मुसलमान हैं। इसलिए ये लोग हम कहना चाहते हैं, मैं कृपया देखें, अपनी बात कहें।